पॉपुलेशन के हिसाब से 1 मिलियन या 12 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है. हाउ मेनी डॉक्टर्स इज दैट पर पर्सन? There are thousands and thousands of people who are dependent on one doctor. So what is it that we are doing to address that need? There are 2 hospitals which directly deal with psychiatric disorders. एक तो हमारा psychiatric hospital है जिसमें जाने से I would hesitate to go because you know the whole idea is that वहाँ जाएंगे they might lock you up. So today we have with us Dr. Anjuman Bains. She's a trained psychologist, a PhD holder, also holds a diploma in guidance and counseling. And apart from being a counseling psychologist, she is a resource person with CBSE and has trained various teachers at the school level. So if we start this with schools and have trained personnel who will deal with this, certainly I feel the problem can be addressed. So the workshop here today is being conducted for the well-being of all of you all. I welcome Dr. Anjuman Bains. She will deliver on mental health and issues. A little bit I want to share with you that there is no health without mental health. And this is the version of World Health Organization. We all from the very beginning must be hearing that healthy mind lies in a healthy body. It's equally associated that so far as we are concerned about health, equal attention should be given to the mental health. This workshop is organized in order to educate our field functionaries how to support survivors of violence by incorporating psychosocial counseling, medical care, shelter services, legal support and timely action from law enforcement, which is very much critical. I always got a chance to, interact with this department through webinar on a distance where we hosted a lot of things, and I can see some people smiling so they remember my face. And I've always shared this also within my family. I've loved working with this department for 2 reasons. One, the cause for which it works, it's close to my heart. Women empowerment and also child protection services. Purely on the basis of ideological will also, and also what I stand for. And second thing is, it works in such a high stress zone, something that I can partially relate with, but I can't compete with what you all go through on a daily basis, that is working in high stress environments. Because me being a therapist, I have to also hear that and go through that in a day. Now today's entire session is going to be divided in very specific segments. When I got this opportunity that I had to speak on this, I was thinking, what can I give away in this session? And I realized that a lot of you are here and I'm an expert of psychology. Maybe tips on how to deal with, victims who come to you. Speaking from a psychologist perspective, I should give you some tips on that. How to create a safe space and a bit on that. And maybe right at the end, I give you some de-stress techniques which we do all together, which might help you to de-stress yourself in high stressful zones. And as ma'am rightly quoted right here, at the end, because you all come with so much of experience, I think I should allow the stage to all of you to share that what kind of areas you work in and what we can do about it. मान लीजिए आप 5 बच्चों को बचा के लाए हैं एक कार में, वो कार आके आपके यहाँ रुकती है. The first thing we might say is वो child abuse की कार आ चुकी है, वो सारे child abuse वाले बच्चे आ रहे हैं लाइन में. Why don't we know their names and address them with their names? And if you don't know, it's better to call them with they, them, you, they, rather than calling them and tagging them as sexually abused, domestic violence cases. Second, say what you mean and mean what you say. A lot of us, when we are working in these areas and are social workers, we commit beyond what we can do for them.
because we want to make them really comfortable. As simple as when we tell somebody, I'll be there for you, don't worry, I'm there for you always. इस कल्चर में आप काम करते हैं, आप लोग सब वैली में काम करते हैं, आप सबको यहाँ के शब्दों की फेमिलियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ के लोग यही के लैंग्वेज यूज़ करेंगे या फिर यहाँ के वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो जैसे हम किसी सब्जी को कहीं और कुछ और बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं, ऐसा नॉर्मल चीज़ों को भी बोलेंगे। अगर आपको वर्ड समझ नहीं आएगा तो आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लूज़ कर जाएंगे। आज का जो सेमिनार है ये महकमा वुमेन एम्पावरमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर के वर्कर्स हैं और दूसरा जो हमारे MSK हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और हम लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ तो ध्यान देते हैं बट मेंटल हेल्थ की तरफ उतना तवज्जो नहीं दे पाते। तो आज हमने यहाँ एक डॉक्टर अंजुमन बैंस को बुलाया है जो कि कंसल्टेंट हैं, बहुत रिनाउंड मेंटल हेल्थ पे एक फैकल्टी हैं। तो आज वो हमारे अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स को जिस तरह से वो उन बच्चों से डील करते हैं, बच्चों से, उन औरतों से जो जिनको सेक्सुअली अब्यूज़्ड होते हैं और वो बच्चे भी जिनके साथ ऐसे ऐसे अपराध उनकी फैमिली में कोई या कोई रिलेशन में या कोई बाहर किसी तरह के इफ़ेक्टेड लोग होते हैं, उनको किस तरह से डील करना है, ये हमारे आज के जो फैकल्टी हैं वो आज उनको अच्छे से तफसील में बता रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ जो है वो उसमें बहुत ज़रूरी है उसका मेंटली हेल्दी होना। तो अगर हमारे हेल्थ के साथ साथ हमें ये भी पता होगा कि हमारे क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्यों डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, उसको कैसे कैटर करना है, अगर शुरू से इन चीज़ों का पता चल जाता है तो हम उसको अच्छे तरह से जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। हमारे एक्चुअली ये जो लोग हैं, हमारे सोशल वर्कर्स हैं, हम इन्हीं को ट्रेन करते हैं क्योंकि यही उन औरतों और उन बच्चों के साथ डील करते हैं। तो अगर ये हमारे लोग अच्छे से जानेंगे कि अपना काम कैसे करते हैं, तभी ये फील्ड में जाके अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ जो है इसको लोग एक टैबू देते हैं और अगर किसी को बताओगे कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए तो लोग जाने से शर्माते हैं, पता नहीं उनको लगता है कि क्या है, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। बट इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये पागल या कोई मेंटल इलनेस है। होती है लोगों को प्रॉब्लम, घर में अगर कोई बीमार है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि घर में कोई विक्टिम है, तो उन चीज़ों से उसमें शुरू में डिप्रेशन जो है वो आ सकता है। तो उससे डील करने का यही तरीका है कि आप शुरू में जो भी आपको अगर कुछ ऐसा लगता है अनयूजुअल, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। तो आप शुरू से अगर इस बीमारी को पकड़ लेंगे तो फिर ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। ये हमारे वन स्टॉप सेंटर्स जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बनाए हैं इसीलिए, ताकि वो औरतें जो है उनको किसी तरह की भी गाइडेंस चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल है, उनको लोन कैसे लेना है, बैंक से कैसे स्कीम्स का बेनिफिट लेना है, उसके बाद लीगल एडवाइस अगर कोई चाहिए उनको, वो उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो वकील कर सकें, उनको कोई हेल्थ का इशू है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, तो ये हमारे वन स्टॉप सेंटर जो हैं इस तरह की जो सारी सहूलतें इनको प्रोवाइड कराते हैं, इनके साथ जाते हैं, इनकी जिस तरह से भी हो सकता है वो मदद करते हैं। ये हमने आज मिशन डायरेक्टरेट विमेन एम्पावरमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक 1 डे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है हमारे अपने फंक्शनरीज के लिए, जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर फॉर विमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए हमने एक 1 डे का सेमिनार मेंटल वेलबींग पे ऑर्गेनाइज किया था। इसका मेन एम ये है कि जो हमारे अपने फंक्शनरीज हैं जो डे इन एंड डे आउट डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे काम करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, तो उनको एक वेल इक्विप करने के लिए कि कैसे वो अपने सर्वाइवर्स के साथ डील करें। और आपने देखा होगा 2-3 साल से पैंडेमिक के जो हालात रहे, कोविड के हालात रहे, तो वी आर रिज्यूमिंग आवर नॉर्मल लाइफ्स, तो उसमें हाउ डू वी अडेप्ट एंड हाउ डू वी स्टे स्ट्रॉन्ग, हाउ डू वी स्टे हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली, तो उस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये ओवरऑल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते, हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, तो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। रूरल
पॉपुलेशन हो या अर्बन पॉपुलेशन हो, ये दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं।